بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو حضرت الیاس سلیم کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ حضرت الیاس سلیم سیدون کا بادشاہ تخت شاہی پر بیٹھا اپنے ارکان سلطنت کے ساتھ باتیں کر رہا تھا جو اپنی اپنی کرسیوں پر براجمان تھے۔ اچانک ایک درین نے آ کر بادشاہ کو تنظیم دی اور عرض کیا، حضور شاہ علی کا قاصد شرف باریابی چاہتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ قاصد کو حاضر کرو۔ دربان واپس گیا اور چند لمحوں بعد بالبک کے بادشاہ کا قاصد دربار میں آ کر بادشاہ کے حضور پیش ہوا۔ اس نے ایک مہد بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا جو بجلیق کے بادشاہ نے بھیجا تھا۔ سیدون کے بادشاہ نے مہد پڑھا، پھر قریب بیٹھی اپنی بیٹی شہزادی ازنیل کی طرف بڑھا دیا۔ شہزادی نے بھی مہد پڑھا جس میں بالبک کے بادشاہ نے شہزادی سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ شہزادی مہد کا مطالعہ کرنے لگی۔ جب وہ مہد پڑھ چکی تو بادشاہ نے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے شادی کے بارے میں؟ شہزادی ازیل نے قدرے شرماتے ہوئے کہا، واہ حضور، مجھے انکار نہیں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ بادشاہ نے شہزادی سے اس کی شرط پوچھی تو شہزادی نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ جب میں بیعت کر وہاں جاؤں تو شاہی محل میں داخل ہونے سے پہلے بھل دیوتا کے زیکل میں جا کر اسے سجدہ کروں۔ قاصد نے شہزادی کی شرط اپنی تو فورا بولا، ہمارے بادشاہ کو آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے بادشاہ سے جا کر کے دو کے تشکل تیار ہو جائے تو بارات لے کر آ جائے اور شہزادی کو بیعت کر لے جائے۔ اس شرط کے علاوہ ہماری اور کوئی شرط نہیں ہے۔ شہزادی کے باپ نے قاصد سے کہا۔ قاصد نے جھک کر سلام کیا اور پلٹ کر دربار سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد تمام درباری اور سلطنت کے ارکان واؤ غیر بادشاہ اور شہزادی ازنیل کو شہزادی کا رشتہ طے پا جانے کی مبارکباد دینے لگے۔ بالبک مغربی دمشق کے ایک شہر کا نام ہے۔ صدیوں پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفات پانے کے بعد قوم بنی اسرائیل مختلف قبائل میں بٹ گئی اور ہر قبیلے نے اپنی اپنی سلطنت بتائی۔ اس میں سے ایک قبیلہ ملک شام کے علاقے لبنان کے اس حصے میں آ کر آباد ہوا جہاں بھی اس شہر کے تاریخی کھنڈرات موجود ہیں، اور اس زمانے میں اس کا نام بھلیک تھا۔ عرصہ دراز تک جب بنی اسرائیل میں کوئی پیغمبر نہ آیا جو خلوق خدا کو وعظ و نصیحت کرتا اور انہیں برائیوں سے باز رہنے کی تلقین کرتا، تو قوم بنی اسرائیل اور جھوٹے خداؤں کی پرستش کرنے لگی۔ چنانچہ ملک کے لوگ بھی بل دیوتا کی پوجا کرتے تھے۔ 4000 سال قبل مسیح میں اس قبیلے کے 4 بادشاہ گزرے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام الابل تھا۔ اس نے شہر میں ایک ہیکل بنایا تھا۔ عرصہ دراز بعد اس پیکل کو بل دیوتا کا ہیکل کہا جانے لگا۔ بازل دیوتا کو قربانی پیش کرنے کے لیے دوسرے شہروں میں بھی عظیم الشان قربان گاہیں اور ہیکل بنائے جاتے تھے۔ پوجا کے لیے خاص قسم کے ظروف واؤ برتن تیار کیے جاتے تھے۔ لوگ دیوتا پر خوشبو میں چڑھاتے، بچوں اور مویشیوں کی صحت واؤ سلامتی کے لیے قربانیاں دی جاتی اور جلائی جاتی تھیں۔ ایلایت کے بادشاہ کا نام آئے تھا۔ جب اس نے سیدون کے بادشاہ کا شہزادی ازنیل کی شادی کے متعلق پیغام اور شہزادی کی شرط سنی تو اس شرط کو پورا کرنے کے لیے احکامات جاری کیے۔ بل دیوتا کے مینادر کی کمی و آرائش اور شور سے شروع ہو گئی۔ شہر کا ہر چھوٹا بڑا اس کام میں بخوشی حصہ لے رہا تھا۔ بادشاہ خود بھی تعمیری کام کی دیکھ بھال کرنے روزانہ آتا۔ ہر کام کے لیے اس نے خزانے کا منہ کھول دیا تھا۔ رعایا بھی نقدی اور سونا چاندی نظر کر رہے تھے۔ جب بادشاہ کو ہیکل کے مکمل ہونے کی اطلاع ملی تو وہ نہایت خوش ہوا۔ اس نے ہیکل کا معائنہ کیا اور حکم دیا کہ ہیکل کو بند کر دیا جائے، اور جب اس کی بیوی ازنیل اس میں عبادت کر لے تو پھر عوام کے لیے کھولا جائے۔ بادشاہ کی شادی کے موقع پر بالبک دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ شہر والوں نے رنگ برنگ لباس پہنے ہوئے تھے۔ خوب جشن کا سماں تھا۔ بادشاہ شہزادی ازتل کو بیعت کر واپس آیا تو ہر طرف سے مبارکباد کی آواز میں آنے لگیں۔ بادشاہ اور ملکہ ہیکل کے بڑے دروازے پر پہنچے تو قتل کھولا گیا اور وہ دونوں ہیکل میں داخل ہو گئے۔ ملکہ ازتل بل دیوتا کے مجسمے کے آگے سجدے میں گر گئی اور کافی دیر تک دعائیں ماں لکھنے کے بعد اٹھی۔ پھر بادشاہ اور ملکہ شاہی قتل کی طرف رخصت ہوئے اور ہیکل کے اندر لوگوں کا ہجوم داخل ہو گیا۔ وہ بت کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے تھے اور کائنات کا ذرہ ذرہ ان کی بے عقلی اور جہنم کا ایندھن بننے پر افسوس کر رہا تھا۔
कि वो अहमक लोग खालिक हकीकी की बजाय इस बुत के आगे झुके हुए थे जो अपने ऊपर से एक कभी भी हटाने की ताकत न रखता था। ये गुमराह और काफिर लोग रोजाना बल देवता की पूजा करते थे। मुख्तलिफ मौसमों में बल देवता की पूजा के लिए अजीम उश्शान इज्तिमा होते थे, जिसमें बादशाह और मलाला समेत दूसरे अमराए सल्तनत भी शिरकत करते थे। मौसम बहार में भी खुसूसी इबादत का इंतजाम किया गया। पूजा के बाद बल देवता के कदमों के सामने बनी हुई मखसूस जगह पर तेज आग रोशन की गई। जब शोले खूब भड़कने लगे तो एक नौजवान और उसकी बीवी अपने चंद माह के मासूम बच्चे के साथ आग के करीब आए और नौजवान ने बीवी की गोद से बच्चा लेकर आग में फेंक दिया। आग में गिरते ही मासूम बच्चे की वल्दोज मैच हैकल में गोभी और आग के शुरू ने इसे हमेशा के लिए खत्म कर डाला। बच्चे की मौत तुम से नामुहाल होकर शौहर के साथ लपट गई। नौजवान भी दम बखुद गुड़लिफ था। फिर उसकी बीवी बेहोश हो गई। बच्चा जल कर राख हो गया तो हैकल के काहन ने नौजवान से कहा, ऐ नौजवान, अबल देवता को हमेशा खुश रखने के लिए तूने अजीम कुर्बानी पेश की है। अब वो तुमसे कभी नाराज ना होगा। तुम और तुम्हारी बीवी दोनों हमेशा के लिए पाक हो गए हो। सब लोग उसे मुबारकबाद देने और हैकल से बाहर जाने लगे। आखिर में तो जवान ने अपनी बेहोश बीवी को उठाया और घर की तरफ चल दिया। घर आकर उसने बीवी के मुंह पर पानी छिड़का तो उसे होश आ गया और वो बेताबी से इधर उधर देखते हुए बोली, मेरा बच्चा, मेरी जान कहाँ है। फिर इसे बच्चे की कुर्बानी का वाकया याद आ गया और वो रोते हुए अपने खावनत को झंझोड़ते हुए बोली, ये कैसा मजहब है, बल कैसा मबूद है जो मासूम बच्चों की कुर्बानी मांगता है। इस पर वहशत सी तारी हो गई। खावनत इसे दिलासा देने लगा। लड़की के दिमाग पर अपने लखत जिगर की मौत का ऐसा असर हुआ कि वो पागल होकर गलियों में ठोकरें खाने लगी। पैकल से थोड़ी दूर एक चौक में लोगों के बहुत बड़े हुजूम में एक नूरानी शक्ल का बूढ़ा चबूतरे पर खिड़वो लफ्ज कर रहा था, ऐहल अमलायक कि सूसी अलैहिस्सलाम की शरीयत भूल गए हो। क्या तुम्हें याद नहीं रहा कि एक दिन मरने के बाद तुम अपने खालिक के हुजूर पेश किए जाओगे और तुमसे तुम्हारे अमाल का हिसाब लिया जाएगा। क्या तुम इन नियमतों के वाक़यात भूल गए हो जिनकी बदअमालियों की वजह से उन पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ और वो सफ़ा हस्ती से मिटा दी गईं। तौबा का दरवाज़ा हर वक्त खिला है। अल्लाह के हुजूर तो ये करो और अपने कफर वाउ शरक से बाज आ जाओ। फिर इस बुजुर्ग ने पागल लड़की की तरफ इशारा किया जो मजमा में नजर आ रही थी। बूढ़े ने लोगों से कहा, इस लड़की की तरफ देखो, ये वही है जिसका नौनिहाल चंद रोज पहले बाग देवता को खुश करने के लिए जिंदा जला दिया गया था। अगर बामल सच्चा है तो इसे जाकर कहो कि इस लड़की को तंदुरुस्त कर दे। क्या उसने बच्चे की अजीम कुर्बानी इसलिए दी थी कि घर पर बाद हो जाए और ये पागल होकर ठोकरें खाती फिरे। इतने में बादशाह के सिपाही आ गए और इन्होंने बल देवता के खिलाफ वज़ा करने और लोगों को मजहब से गुमराह करने के जुर्म में उसे पकड़ लिया और इस पर कोड़े बरसाते हुए वहां से ले गए। मगर बूढ़ा तशद्दुद की ताब ना लाकर रास्ते में जंग बहक हो गया। इस सरजमीन पर वो आखिरी आलम था जो लोगों को शरीयत मूसा अलैहिस्सलाम की तबलीग करता हुआ शहीद हो गया था। इसके बाद वहदानियत की तबलीग देने वाला वहाँ कोई ना था। कई सालों बाद जबकि हर तरफ कफर वाउ शरक फैल रहा था, अल्लाह ताला ने अपने एक नेक बंदे को रसूल बनाकर अहल बालबत की तरफ भेजा। उनका नाम हजरत इलियास अलैहिस्सलाम था। आप हजरत हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। आपने ऐलान नबुवत फरमाया तो कफर वाउ शरक के ऐवानों में जलजला आ गया। बालबत के बादशाह और हैकल के काहन को अपने इक़्तिदार की मौत नजर आने लगी। इन्होंने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की भरपूर मुखालफत शुरू कर दी, मगर आप हर जगह अल्लाह ताला का पैगाम सुनाते रहे। आप फरमाते, हैरत है कि तुम खालिक का अनाथ को छोड़कर बुत को पूजते हो। अल्लाह तुम सबका और तुमसे अगले तुम्हारे बाप दादा का रब है, वही हक इबादत है। लेकिन अहल बालबक ने आपकी तकज़ीब की। वो लोग आपकी तबलीग व नसीहत से परेशान थे। इन्होंने आपको कत्ल करने का मंसूबा बनाया, लेकिन उनकी कोई तदबीर आपको तबलीग हक से न रोक सकी। कुरान हकीम में आपका जिक्र सूरत सकी सूरत अल-साफ़ात में इस तरह आया है, और बेशक इलियास अलैहिस्सलाम रसूलों में से हैं। जब इन्होंने अपनी कौम से कहा, क्या तुम डरते नहीं हो? क्या तुम बल देवता को पुकारते हो और बेहतरीन पैदा करने वाले
खालिक व मालिक अल्लाह को छोड़ते हो, जो तुम्हारा रब और तुम्हारे पहले बाप दादा का रब है। बस इन्होंने इसे झटलाया तो वो यकीना अजाब में हाजिर किए जाएंगे, मगर अल्लाह के मुखलिस बंदे अजाब से बच जाएंगे। और हमने पीछे आने वालों में उनका जिक्र खैर छोड़ा। इलियास पर सलाम हो, हम उसी तरह नेकी करने वालों को बदला देते हैं। बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। बालबक के बादशाह और हैकल के काहिन ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की तालीमात और नसीहतों से निजात पाने के लिए आपस में साजिश की, ताकि लोग उनकी तबलीग से मुतासिर न हो सकें और इन्हें झूठा साबित करके तबलीग हक से रोका जा सके। क्यों ना इलियास से कोई मुजिज़ा तलब किया जाए। बादशाह ने काहिन से पूछा जिसका नाम बरोशुन था, अगर उसने मुजिज़ा दिखा दिया तो फिर काहिन ने खदशे का इजहार किया, फिर देखा जाएगा। बादशाह ने कहा। काहिन बरविश्वस ने सोचते हुए कहा, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। इस प्रोग्राम के बाद लोगों को एक खुले मैदान में जुमा किया गया। बादशाह का बहन और अमराए सल्तनत के अलावा हजरत इलियास अलैहिस्सलाम भी वहां मौजूद थे। फिर एक बेल को ज़बह करके इस पर लकड़ियां रख दी गईं। बादशाह ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम से कहा, अगर आसमान से आग उतरकर इसे जला दे तो हम ईमान ले आएंगे। ये सुनकर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज़ की, ऐ बारी ताला, ये लोग मोजिज़ा मानते हैं, शायद ईमान ले आएं। अपने करम से आसमान से आग भेज जो इन लकड़ियों को जला दे। आपकी दुआ खत्म होते ही आसमान से आग जाहिर हुई और लकड़ियों को आग लग गई। मोजिज़ा देखकर बादशाह आप पर ईमान ले आया और इकरार किया कि आप वाकई अल्लाह के सच्चे नबी हैं। और भी कई लोग हजरत इलियास अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, लेकिन काहिन बरविश्वस ईमान न लाया और इस मोजिज़ा को जादू और नजर बंदी कहता रहा। वो बादशाह को बहकाने लगा और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के मोजिज़े को गलत रंग देने लगा। इसने बादशाह को बतल देवता के गजब और गुस्से से खौफजदा करते हुए कहा, अगर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह का सच्चा नबी होता तो अक्सरियत इस पर ईमान ले आती। इसके पैरोकारों की तादाद तो उंगलियों पर गिनी जा सकती है। काहिन इस तरह की दलीलें पेश करता और बादशाह को दोबारा बुत परस्ती की दावत देता रहा। नतीजे में 15 दिन बाद ही बादशाह मुर्तद हो गया। इसने ऐलान कर दिया कि वो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाया और बल देवता को नहीं छोड़ सकता। इसके बाद आपकी पहले से भी ज्यादा मुखालफत होने लगी। कफर व शरक से अहल बालबत के कान, आंखें और दिल अंधे हो गए और उनकी दुश्मनी में शिद्दत पैदा होती चली गई। चंद साल गुजर गए। आखिर एक दिन अल्लाह के रसूल हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अहल बालबक पर अजाब नाज़िल करने की दुआ की। ऐ अल्लाह, अहल बालबक तेरा नाम तक सुनने के रवादार नहीं, तेरी नेमतों के नाशिक्रे हैं, तेरे नबी को नहीं मानते, इन पर अजाब नाज़िल फरमा। आपकी दुआ कबूल हुई। अल्लाह ताला ने बालबक के नाफरमानों और काफिरों पर खुश्क साली का अजाब नाज़िल किया। आसमान ने पानी बरसाना बारिश बंद कर दिया। चश्मों नदी नालों का पानी ज़ेर ज़मीन चला गया। फसलें वीरान हो गईं, दरख्त सूख कर टिंड मनड हो गए और हर जगह धूल उड़ने लगी। लेकिन लोग सीधे रास्ते पर आने की बजाय बल देवता के आगे जाकर गुड़ गड़ाते और बारिश के लिए दुआएं मांगते थे, लेकिन वो बेजान मुजस्समा किया कर सकता था। हजरत इलियास उनको समझाते और फरमाते, ऐ लोगो, क्यों खुद को हलाकत में डालते हो? इस रास्ते पर क्यों नहीं चलते जिसकी मैं निशानदही करता हूँ? अहल बिल यकरा रास्त पर न आए और भूख प्यास से मरते रहे। 3 साल इस कहता में गुजर गए। एक दिन लोगों को ख्याल आया कि ये कहता और खुश्क साली हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की बददुआ का नतीजा है, क्यों ना उसे हिलाकाफ कर दिया जाए। फिर वो लोग आपको तलाश करने लगे, लेकिन अल्लाह ताला के करम से किसी की कोई चाल कामयाब ना हुई, क्योंकि अपने रसूलों का अल्लाह ताला खुद मुहाफिज व निगहबान होता है। एक दिन हजरत इलियास अलैहिस्सलाम खुद ही बादशाह अखीब के पास तशरीफ ले गए और इसकी परेशानी देखकर कहा, अखीब, जिसे तुम पहुँचते हो इसे कहो ना कि तुमको पानी दे, कहत से निजात दे, नहीं तो तुम मेरे अल्लाह पर ईमान लाओ, वो तुम्हें पानी देगा। बादशाह अखीब ने कहा, मैं बल देवता से पानी मांगूंगा, मैं मुंतजिर रहूंगा कि तुम कब मेरे अल्लाह से पानी मांगने आते हो। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वहां से वापस चल दिए और अगले दिन बादशाह के साथ बहुत से लोग हैकल गए और गुड़ गड़ा कर देवता से बारिश मांगी।
लेकिन बल देवता के बुत ने कोई जवाब ना दिया। काहन ने इन्हें यकीन दिलाया कि बादशाह और दूसरे लोगों की दुआ रायगा नहीं जाएगी और बारिश जरूर होगी, लेकिन बारिश न हुई। तंग आकर बादशाह खुद ही एक दिन हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो गया। आपने फरमाया, कहो, बल ने तुम्हारी हालत पर रहम नहीं खाया। वो बेजान मुजस्समा किया दे सकता है जिसके लिए तुम अपनी आखिरत खराब करते हो। बादशाह ने कहा, तुम अपने अल्लाह से बारिश के लिए दुआ करो, बारिश के पहले कतरे के साथ ही हम ईमान ले आएंगे। बादशाह और इसके साथियों ने कसमें खाकर यकीन दिलाया। तब आपने अल्लाह ताला से बारिश की दुआ की। दुआ के बाद फौरन ही आसमान सियाह बादलों से ढक गया और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। हर तरफ जल थल हो गया और घास वाओ गल्ला उगने लगा। लेकिन वो लोग फिर भी मुनकर हो गए और अपने कफर पर उड़े रहे। उसके बावजूद हजरत इलियास अलैहिस्सलाम तबलीग हक करते रहे। ये भी कहा जाता है कि जब काफिरों ने आपको कत्ल करने का मंसूबा बनाया तो आप छप गए। आप अपनी कौम के बादशाह से 10 साल तक एक गार में छपे रहे जो अलदम पहाड़ के नीचे था, हत्ता कि अल्लाह ताला ने बादशाह को हलाक कर दिया और इसकी जगह किसी और को बादशाह बना दिया। तब हजरत इलियास अलैहिस्सलाम इस बादशाह के पास आए और इसे तौहीद की दावत दी। वो बादशाह मुसलमान हो गया। इसकी कौम के बहुत से लोग भी मुसलमान हो गए। सिर्फ 10,000 अफराद मुसलमान न हुए तो बादशाह ने उन सबको कत्ल कर दिया। ये भी कहा जाता है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम अपनी कौम से भागकर पहाड़ के गार में हैं या 40 रातें छपे रहे और मुजिज़ाना तौर पर कौवे उनके पास उनका खाना लाते थे। जब हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की कौम ने आपको झटलाया और अजियत दी तो इन्होंने अल्लाह से अपनी और रूह कब्ज़ा करने की दुआ की। इसके नतीजे में आपके पास एक जानवर आया। इसका रंग आग जैसा था कि आप इस पर सवार हुए। अल्लाह ने आपको पर्दा दिया और नूरानी लिबास पहना दिया और उनसे खाने और पीने की लज़्ज़त ख़त्म कर दी, यानी आपको खाने पीने की हाजत व ख्वाहिश न रही। इस तरह आप मुल्की भी हैं और बुशरा भी, अर्जी भी हैं और समावी भी। और आपने अल्बी बिन खतूब को अपने बाद तबलीग की जिम्मेदारी संभालने की वसीयत फरमाई। हजरत अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि एक सफ़र में हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हम एक जगह ठहरे तो अचानक एक आदमी कह रहा था, ऐ अल्लाह, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरहूम मग़फ़ूरा उम्मत में से कर दे। मैंने देखा तो वादी में 300 हाथ से ज्यादा लंबे कद का आदमी खड़ा था। इसने मुझसे पूछा कि तो कौन है। मैंने बताया कि मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम अनस बिन मालिक हूँ। इसने पूछा कि वो कहाँ हैं। मैंने कहा कि यहाँ करीब ही हैं और आपका कलाम सुन रहे हैं। इस आदमी ने कहा, उनके पास जाओ और मेरी तरफ से उनको सलाम कहो और कहना कि तुम्हारा भाई इलियास तुम पर सलाम कहता है। मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपको इत्तला दी तो आप उनके पास आए, उनसे मुलाकात की और उनसे बगलगीर हुए, सलाम कहा और दोनों बैठकर बातें करने लगे। इस आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मैं साल में सिर्फ एक मर्तबा खाना खाता हूँ और वो दिन आज ही है, लिहाजा व हमजा दोनों मिलकर लिहाजा आओ खाते हैं। फिर आसमान से दस्तरखान नाज़िल हुआ, इसमें रोटी, मछली और अजवाइन थी। फिर इन दोनों ने खाना खाया और मुझे भी खिलाया। फिर हमने असर की नमाज अदा की। फिर वो हमसे रुखसत हो गए। मैंने उनको देखा कि वो बादलों से गुजर कर आसमान की तरफ जा रहे हैं। हजरत साबित रजी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि हम मसब बिन अलज़बीर के हमराह कुफा के करीब एक जगह पर थे। मैं वहाँ एक बाग में 2 रकत नमाज अदा करने के लिए दाखिल हुआ। मैंने सूरत अल-गाफ़िर शुरू की। अचानक मेरे पीछे सफ़ेद खच्चर पर सवार एक आदमी आया। इसने यमनी लिबास पहना हुआ था। इसने मुझसे कहा कि जब तो काफिर अल्ज़म कहे तो कहना, ए तौबा कबूल करने वाले, मेरी तौबा कबूल कर। जब तो शदीद अलक़ाब कहे तो कहना कि उसे सख्त सज़ा देने वाले, मुझे सज़ा ना देना। जब तो ज़िलतुल कहे तो कहना कि ए करम करने वाले, मुझ पर अपनी रहमत के साथ करम कर। जब मैंने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई ना था। मैं बाहर निकला और मैंने लोगों से पूछा कि अभी अभी तुम्हारे पास से सफ़ेद फीचर पर सवार यमनी लिबास पहने हुए कोई आदमी गुजरा है? इन्होंने जवाब दिया कि हमारे पास से कोई शख्स नहीं गुजरा। लोगों का ख्याल है कि वो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ही थे।
ऐसी तरह की वीडियो और वाकया को देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आमीन या रब्बल आलमीन।